अब इसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। ऑफ मैटर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम जानते हैं कि वी नो दैट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। This was explained by the simple atomic theory leading to the idea of electric dipole Elgin in the dielectric. Let us now see the effect of the placing a piece of iron in a magnetic field. For this an experimental element now as a Rowland ring use. This consists of a toroidal winding with a magnetic material, say iron. Inside it is the form of a ring. This is equivalent to a toroidal solenoid support on a core of a magnetic material. Secondary few turns are connected to a ballistic galvanometer G as so in figure. ये कह रहा है हमारे पास एक टॉरॉइडल सोलिनॉइड है और ये इस टाइप से है और इसको हमने बॉन्ड से ब्रेक कर दिया गया है ये इस तरह से सराउंडिंग, और करने के बाद ये एक रेजिस्टेंस निकाल के लाए और फिर हम इसको ले गए इसमें और फिर हम इसको इसके रोटेट करते हुए और लेके गए और हमने यहाँ एक रियोस्टेट लगा दिया और ये हमने एक बैटरी लगा दी और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और यहाँ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और ये रियोस्टेट के साथ और ये प्लस माइनस है ये ईएमएफ। तो वो ये कहता है कि दैट इज आर इफेक्ट्स ऑफ दिस सर्कुलेटिंग करंट with a cross section of iron spacements inserted with the ring. With the space inside the toroidal empty, the change in the flux is observed with the help of ballistic galvanometer by turning of the current suddenly. The experimenter represented by the matter filling in the entire toroidal of the deflection is found for the same current. Experimenters show that the magnetic induction B is modified by the presence of matter in the toroidal. This experimental can be repeated with the core of different material, few substance as is such O2, air, platinum, aluminium और क्रोमियम मैग्नीन। यानी कि ये कह रहा है कि हमारे पास अगर हमने इसके पास कोई भी एक मटेरियल रख दिया, ये बना हुआ है सर्कुलेटिंग और ये इस टाइप से, तो जब इसको हम इसके पास लाते हैं तो पास लाने से और अबे ले जाने से इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो इसको हम इधर ले गए और फिर इधर ले गए, तो दैट इज अ चेंज ऑफ द डिफ्लेक्शन। तो चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन in galvanometer by the effect of these few substance of the experiment repeated by O2, air, platinum, aluminium और आपका दूसरा है क्रोमियम और मैग्नीन, क्रोम और ये मैग्नीन। That is are affected of this galvanometer, but so is a very small increase, so very small deflection. The effect of the very small deflection
but some materials are present in toroidal of these called name are paramagnetic. This is the effect of the paramagnetic substance. In second case, this is the toroidal solenoid are said to paramagnetic. Other substances is hydrogen, H2O, bismuth, copper, zinc, antimony or gold shows very small decrease in the flux are said to be dimagnetic. But in the some materials are present H2, H2O, zinc, Au, Sb near of coil, these deflection of diamagnetic. Diamagnetic in experiments, so these are ordered substance like iron and cobalt will have flux change very large. So this is the flux is very small. Flux is very small, but iron and cobalt near of some substance of coil, these are very large deflection. Large deflection, this is called in paramagnetic substance. Ferromagnetic substance, these are value are now ferromagnetic as a circular cross section of a Rowland rings experiment. Rowland ring experiment. Rowland ring experiment, when the external field is applied magnetic effect, this effect can be represented by series of minute current loop where the all current direction are same. The resultant current is equivalent in the sum of these mesh current are equal to the current round the boundary of the ring as now a surface current. मैग्नेटिक डाइपोल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। इतना हमने देखा कि हमारे पास हम किसी भी टॉयरॉइड के पास हमने O2 ले गए, Al ले गए, प्लेटिनम एल्यूमिनियम ले गए तो इसमें डिफ्लेक्शन स्मॉल हुआ, या हम H2 और जिंक और एल्यूमिनियम और सबस्टेंस ये सब ले गए तो इसमें डिफ्लेक्शन हमारा स्मॉल हुआ। बट आयरन और कोबाल्ट लेने से गैलोमीटर ने लार्जर डिफ्लेक्शन दिया, तो दैट इज आर हम ये कह सकते हैं ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस हैं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कौन से मटेरियल हमारे पैरामैग्नेटिक हैं, कौन से मटेरियल हमारे डायमैग्नेटिक हैं और कौन से मैग्नेटिक हमारे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि इससे बढ़िया कोई एक्सपेरिमेंट आपके पास नहीं है। आप इसे एक्सपेरिमेंट जनरलाइज कहीं भी कर सकते हैं और जान भी सकते हैं कि गैलोमीटर कितना इजी तौर से अपना डिफ्लेक्शन कंटिन्यूड देगा। यहाँ भी हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ भी हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है और इसको हमने ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने के बाद ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
द मैग्नेटिक डाइपोल कंसेप्ट ऑफ एटम। दूसरा है मैग्नेटिक डाइपोल एंड कंसेप्ट ऑफ एटम। अब इसमें हम मैग्नेटिक डाइपोल और कंसेप्ट ऑफ एटम में रीड करेंगे। तो ये कह रहा है कि ये एटॉमिक थ्योरी का है, और ये बोर ने भी अपनी बात में कहा था कि हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं तो ये एक एटम है, और इस एटम का ये न्यूक्लियस पार्ट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग एक एंगुलर मोमेंटम में रोटेट करते रहते हैं। ये अपने साथ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी रखते हैं, ये अपने साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मेंटेन करते हैं, प्लस ये अपने साथ अगर मैकेनिकल सिस्टम में देखा जाए तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एंगुलर मोमेंटम दोनों को फॉलो करते हैं। जब ये दोनों चीजें यहाँ देखी गई तो ये कहा गया कि लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं, v स्पीड से सर्कुलर रेडियस r पर मूवमेंट कर रहे हैं, और अराउंड ए न्यूक्लियस विद ए प्रोटॉन चेंज एट एनी स्टैंड द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन would be appends to the electric dipole of the p, but the average value of p of the over complete round is 0. Has net electric field due to an atom as a certain distance is 0. तो ये तो हम जानते हैं कि उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, बिकॉज क्योंकि पार्टिकल्स हमारा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो वो घूमते हुए एवरी टाइम किसी गिवन वेलोसिटी v से न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में ये सेंट्रल है वो आर रेडियस पर मूवमेंट करता है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि ये अपने साथ एक एंगुलर मोमेंटम भी मेंटेन करते हैं, L इज इक्वल टू एम बी आर, यानी कि दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम बी आर, और ये जो मूवमेंट करते हैं तो अपने साथ ये मूवमेंट करते समय एक गिवन रेडियस के साथ अपना एक फोर्स मेंटेन करते हैं, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज द वैल्यू ऑफ एम वी का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो इफ दी electron in moving that is producing of magnetic field, producing of magnetic field. So this is the value of electric current. Current is equal to change of charge upon time interval. तो that is the value of I is equal to Q upon, और ये T, और this is the value of Q is equal to NE, N is equal to 1, तो Q is equal to E, that is the value of E upon T. This is the I is equal to E or 1 upon T. Revolution of the electron, revolution of electron, omega is equal to 2 pi n. It is the value of 2 pi upon T. So omega upon 2 pi, this is the value of 1 upon T. is the flow of the electric current E 1 upon T के साथ, तो I is equal to E omega upon 2 pi. So this is the flow of the electric current in circular. I is equal to E omega upon 2 pi. This is the value of E omega 2 pi r, और frequency, this is the measure of a omega is 2 pi r in value of the time taken. The I is equal to E into frequency, और
We discussed the articles of this current carrying a loop, a magnetic field, the circulated current into area of the loop, magnetic moment. This is the magnetic moment. Magnetic moment ML is equal to इलेक्ट्रिक करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। तो ये आपका आ गया एम एल इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रिक करंट आपके पास है ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू ई वी आर इज द वैल्यू ऑफ आई इंटू फ्रिक्वेंसी, और ई ओमेगा अपॉन 2 पाई और वैल्यू ऑफ ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो आर इज इक्वल टू ओमेगा, और ये आर अपॉन 2 पाई आर के साथ। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट इज ई इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू, और एरिया ऑफ द लूप इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो is the loop of ml is equal to, is the value of E is equal to E, और ओमेगा एलिमिनेट तो ई बी अपॉन 2 बी आर 2 पाई आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ V is equal to R ओमेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ V is equal to R ओमेगा, और ई वी अपॉन 2 पाई आर, और ये आर आर। तो ये ई इंटू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई आर से आर। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ई वी आर अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2 ई वी आर। This is the magnetic moment of EBR. This is now the orbital magnetic moment of electron. In ordinary matter must be many electrons going round one V as the other ML. We can assume the distribute producing by the magnetic field B. This is the flux is, that is our flux of the producing of the magnetic field lines. वैल्यू है हमारे पास ये E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। और इसे आप कर सकते हैं, ये E इज इक्वल टू बी ए इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फील्ड इज बी ए। तो चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो D और ये बी ए अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस के ए डी बी अपॉन डी टी, वैल्यू ऑफ ए, और ये पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। तो E इज इक्वल टू माइनस के पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी, एंड फ्लक्स ऑफ इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is the flux of electric field in producing by in magnetic field. This is the EMF is equal to minus k pi r square into dV upon dt, and electric flux is E is equal to minus k E into dl. और value of the calculate in E, और ये 2 pi r into E के साथ। This is the circulate of the moment in charge particle by 2 pi r. So comparison between is the electric field and magnetic field. Compare of electric field and magnetic field. So this is the value of minus k
B into dl or E into dl. In this case of A is the minus k 2 pi r into E is equal to minus k pi r square dv upon dt. माइनस से माइनस, पाई से ये पाई कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, तो ये आ गया 2e इज इक्वल टू और ये r dv अपॉन dt. तो 2e इज इक्वल टू r dv अपॉन dt. तो आप e इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो इसमें. e इज इक्वल टू आपका हो जाएगा भाई e इज इक्वल टू 1/2 r dv अपॉन dt. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन निकल के आ गया. E इज इक्वल टू 1/2 r dv अपॉन dt के साथ. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सेलरेट इन द इलेक्ट्रॉन, हेंस तो m dv अपॉन dt इज इक्वल टू E. तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द न्यूटन्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड. वैल्यू हो जाएगा ये F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के साथ, और ये M और ये dv अपॉन dt इज इक्वल टू E और E के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया आपका dv अपॉन dt इज इक्वल टू E और ये 1/2 r dv अपॉन dt, dv अपॉन dt के साथ. तो यहाँ आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो. ये आपका dt से dt कैंसिल हो गया, तो m v इज इक्वल टू ई आर अपॉन 2 dv इंटीग्रेट. तो m v इज इक्वल टू 1/2 ई आर इंटू v के साथ. तो m v इज इक्वल टू 1/2 ई आर और हमने r का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम बी आर इज इक्वल टू 1/2 ई आर स्क्वायर बी के साथ. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम. तो 1/2 ई आर स्क्वायर इंटू बी के साथ. तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका 2l अपॉन ई आर स्क्वायर. बी इज इक्वल टू 2l अपॉन ई आर स्क्वायर के साथ. और एंगुलर मोमेंटम में इसको ले जाते हैं हम, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी E इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2l अपॉन ई आर स्क्वायर के साथ. और हम ये भी कह सकते हैं m अपॉन l इज इक्वल टू ई अपॉन 2m. Thus we see that the electrons in magnetic field acquire the additional moment of this angular momentum del omega is equal to del v upon r, और del v is equal to वैल्यू हमारे पास है EB upon 2m, EB upon 2ml के साथ. तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है ये E B0 अपॉन 2m l के साथ, और इलेक्ट्रॉन के साथ. तो हम जान सकते हैं कि आप इसे कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है इसकी इज द m b का स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू और 1/4 पाई के एप्सिलॉन z e का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ m r ओमेगा स्क्वायर 1/4 पाई की एप्सिलॉन z e का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r. ये इससे कैंसिल हो गया, तो m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई की एप्सिलॉन z स्क्वायर अपॉन ये r स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है ये E
बी नॉट अपॉन 2me. This is the value 1 upon 4 pi की एप्सिलॉन जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर. और ये फाइनलाइज होके आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक मोमेंट पर डेल एम एल इज इक्वल टू माइनस ई का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4m. इज द वैल्यू ऑफ डेल एम एल इज इक्वल टू माइनस के. ये माइनस एम एल इज इक्वल टू वैल्यू हुई आपकी ई का स्क्वायर आर स्क्वायर. ई का स्क्वायर आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन और ये एम के साथ और ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 4e. तो 4e के साथ अब ये हमें ml मिल गया माइनस ई का स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4ml. तो L इज इक्वल टू एम बी आर. तो L इज इक्वल टू एम बी आर के साथ तो L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. तो ml इज इक्वल टू 1/2 EBR. ये हम निकाल चुके हैं पीछे से. ml इज इक्वल टू 1/2 EBR के साथ मी इज इक्वल टू 1/2 EBR के साथ और हम इसे लगा देंगे. तो m अपॉन L इज इक्वल टू E अपॉन 2m. m L अपॉन L इज इक्वल टू और ये हो जाएगा ml अपॉन 2E अपॉन 2me. तो E अपॉन 2me के साथ. थैंक यू वेरी मच.